गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? येस येस, आई नो दैट यू आर वेरी स्मार्ट एंड कीपिंग योर सेल्फ सेफ. You are not playing outdoor games, right? Yes, only play indoor games and take care of yourself. Drink a lot of water, and as well as you have to take balanced diet. So today we are going to start our next chapter of English, finite and non-finite verbs. Finite and non-finite verbs. But before that, let us understand what is verb. Verb क्या होती है? आपको मैंने पहले समझाया ना सारा verb के बारे में. It is an action word. Action means whatever you do. As you can see, there are some words, they are written on they are here on your screen, and these are the action words. I am speaking, you are listening. I am explaining, you are understanding. These all are verbs. जो भी आप करते हैं ना, अभी आप देख रहे हैं, ये भी verb है. बोल रहे हैं, verb है. सुन रहे हैं, verb है. Everything is verb. That I had explained in the last video. जब मैंने आपको एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट वाला समझाया था, तो मैंने आपको वर्ब के बारे में पूरा डिफाइन किया था. नेक्स्ट, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स. बट बिफोर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. नाउ यू कैन सी philanthropists have donated. Okay, so helping verb have, ये have जो है helping verb है. It changes according to our tenses. It changes according to our tenses as well as subject also. If singular is there, has will come. If plural is there, have will come. Donated, it is the main verb. ये क्या है? Main verb है. काम है मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टेंसेस और इन नंबर. नेक्स्ट आप देखोगे, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट, philanthropists will be donating. So this is a part of future continuous verb. This is a part of future continuous tense. Now some more examples like sit, wait, sleep, go, receive, help. They all are main verbs. An auxiliary verb is, am, are, was, were, has, have, had, does, did. All these are your helping verbs. Now what is, after understanding the verb, what is the main is the difference between the finite and non-finite verbs. Finite और non-finite verbs में क्या differences हैं? Finite verb, a verb which shows time, or a verb which is limited by number, person and gender of the subject. एक verb जो टाइम शो करता है, एक वर्ब जो लिमिटेड होता है, नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो हैं आपके फाइनाइट वर्ब्स. जैसे नेहा राइट्स लेटर्स. नेहा इज सिंगुलर, सो एंड इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो इट विल कम नेहा राइट्स लेटर्स. दे राइट लेटर्स. They is plural, so verb's first form will be there. We have written letters. Now according to tense it has changed. It has changed. First form किस में चेंज हो गई? थर्ड फॉर्म में, क्योंकि have के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म. तो आपने देखा ये कैसे नंबर के अकॉर्डिंग और टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. तो ये होता है आपका फाइनाइट वर्ब्स. नेक्स्ट इज non-finite verbs. A verb that does not show time, or a verb which is not limited by number, person and tense of the subject. जो इसके अपोजिट है.
Raman tries to sing. It and one more thing is that it does not act as a main verb. ये मेन वर्ब की तरह भी एक्ट नहीं करता. रमन ट्राइज टू सिंग. अगर आप इसमें मेन वर्ब देखते हैं तो मेन वर्ब क्या है? ट्राइज टू सिंग. सिंग क्या है आपका? नॉन फाइनाइट वर्ब है. क्योंकि आप फर्स्ट सेंटेंस देखो, रमन ट्राइज टू सिंग सिंगुलर, वी ट्राई टू सिंग प्लूरल, दे ट्राई टू सिंग प्लूरल. अब देखो ट्राइज तो ट्राई में कन्वर्ट हुआ है बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट्स आर देयर, बट सिंग it does not change in any of the case, so they are non-finite verbs. Now let us understand more. What is finite verb? Finite verb means which has a direct contact with subject. जो किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. किन किन केसेस में? टेंस के चेंज में. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये राइट है, बट जब हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये रिटर्न हो गया. ओके, सो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, लाइक आई के साथ एम, ही के साथ इज, दे के साथ आर. ओके, सिंगुलर प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है. देखो मैंने आपको टेंसेस समझा दिए. अब देखो एज पर पर्सन कैसे चेंज होता है. आई रन अ माइल डेली. आपको देखो नीचे एक बना हुआ है ना, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताए हुए हैं आपको. यस, आई रन अ माइल डेली. आई के साथ क्या आएगा? रन. ही रन्स अ माइल डेली, और ही के साथ क्या आएगा? रन्स. नेक्स्ट, चेंज एज पर नंबर. वाओ, एप्पल, रेड एप्पल. आर यू ईटिंग? It is very healthy fruit. An apple a day keeps the doctor away. So, next, apple is of red color. आप देखोगे is. Apple singular तो हमने क्या यूज़ किया? is. नंबर बता रही हूँ मैं आपको singular plural के साथ. Singular तो is यूज़ किया, and if plurals are there तो हमने क्या यूज़ किया? are. Apples are of red color. So apples are of red color. Apples, they are plural, so we use are. According to number हम कैसे चेंज करते हैं? सिंगुलर is, प्लूरल are. ऐसे ही और भी होते हैं, सिंगुलर has या was, और प्लूरल have, were. Okay, so they are the examples of finite verbs. Now, non-finite verbs. Verb which has no effect of subject. It does not change according to tense, according to person, according to number. Like, they do not function as verbs. Non-finite verb क्या होते हैं? ये कैसे verb फंक्शन करते हैं? वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते हैं. They not at all function as verb. They function as adjective, noun और adverb. कैसे फंक्शन करते हैं? एडजेक्टिव की तरह से, नाउन की तरह से, वर्ब की तरह से. ओके, नाउ एडजेक्टिव की तरह से, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन. स्लीपिंग, इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट अ वर्ब, इट इज़ एन एडजेक्टिव. कैट कैसी है? स्लीपिंग. यहाँ पे स्लीपिंग कैट्स होता, कैट्स है तो भी स्लीपिंग आएगा बेटा, कैट है तो भी स्लीपिंग आएगा. सो बिकॉज दिस इज नॉट एक्ट एज अ वर्ब. इसमें वर्ब क्या है? इज. आपका फाइनाइट वर्ब क्या है? इज. बट स्लीपिंग क्या है? एडजेक्टिव. एज अ नाउन, रनिंग इज अ गुड हैबिट. रनिंग, रनिंग हियर इट कम्स एज अ नाउन. ये कैसे एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह से एक्ट करता है. एडवर्ब, आलिया वेंट टू द यूके टू स्टडी. अब देखो वेंट, वेंट यहाँ पे आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है. जो एज अ वर्ब वर्क कर रहा है वो क्या है? वेंट. बट टू स्टडी, दैट इज योर एडवर्ब. इट वर्क्स एज एन एडवर्ब. रीज़न, वाई शी वेंट टू यूके? टू स्टडी. यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल चेंज करके देखो, आलिया की जगह बॉयज़ करके देखो, बॉयज़ वेंट टू द यूके टू स्टडी. ओके, so there is no change in to study.
So that is your नॉन फाइनाइट वर्ब. अगर आप यहाँ पे टेंस चेंज करते हो, आलिया विल गो टू यूके. विल गो, आपने इसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया, विल गो टू द यूके, बट टू स्टडी तो ऐसा ही है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. ओके, सो वी आर हैविंग थ्री पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, 3 टाइप्स: gerund, infinitives, participles. That I will discuss with you in the later chapter, because that is your next chapter. वो आपका अगला चैप्टर है, तो हम इस बारे में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Okay, till then stay home, stay safe, and yes, I had explained you very well. So open your books and try to do the exercise, because a single exercise is there. And send me your response on my personal number. Do it with the help of pencil in a neat and clean handwriting, and at 12 o'clock I will share the answers with you. Then you can match your answers. Thank you. Have a nice day.